Done. अच्छा चलें, ये फर्स्ट क्लास है आपकी मेरे साथ, पाकिस्तान अफेयर्स जनरल नॉलेज 1 पेपर। तो आई होप एवरीवन इज हियर। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, मैं चाहता हूँ कि जस्ट आपका एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सा हो जाए, ताकि आगे फिर हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, तो वी हैव अ लेवल ऑफ कंफर्ट। ठीक है, मैं आप लोगों का नाम लूँगा, सो जस्ट गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, सो दैट वी आर वेल एक्वेंटेड विद ईच अदर, एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। तो स्टार्टिंग विद मिस्टर शारून खुशी जी। मिस्टर शारून खुशी, आप आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मिस्टर हुजैफा नज़ीर। Assalamualaikum sir. My name is वालेकुम Hussam सलाम। Zaid and I belong to Hosur. I have completed my simple BA last year and I'm here to make myself prepared for CPSC. ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, मिस्टर मोहम्मद जिशान। Assalamualaikum sir. जी वालेकुम। Mohammed Zishan from Lahore, and I done my graduate civil engineering from UT Lahore and prepare for PPSC GK portion. ठीक है, ओके। कौन हो गया अब? जुनैरा शौकत, मिस जुनैरा शौकत। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, I have done MPhil in Business Administration, major जो है HR है, and from Kinnett College, and I'm doing job in National Bank. ओके, दैट्स गुड। अच्छा, मिस रुबाब सिकंदर। Assalamualaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, basically, I done my master's in applied psychology from Sargodha University, and I belong from Chakwal. ओके, मिस्टर सुहेल हयात। जी सर, I belong from Engineer sir. I just may complete my bachelor in computer science from Fast Okay. National University. अच्छा अच्छा, चलें, दैट इज माय alma mater also, so good to know that I have a fellow over here. Okay, Mr. Hamad Faryad. Assalamualaikum sir. My name is जी Hamad वालेकुम Fayad सलाम। and I did my BS Zoology from University of Narwal and I live in Narwal. ठीक है, ओके। अच्छा, मिस सफिया नसीर। Assalamu alaikum, sir. I'm currently doing MBA from UET, and side by side I'm doing job in Virtual University as a content. I'm from Lahore. Okay, Mr. Nabil Asif। Assalamu alaikum, sir. Sir, जी वालेकुम सलाम। my name is Nabil Asif, and I have जी done जी। my master from University of the Punjab in sports science and physical education. And Okay, currently, I am working as a sports teacher at Lahore Maktab Islamic School. well, that's good to know. Uh, the next is Awais Gilani Saab. We all know who you are, so we'll move on to Mr. Lukman. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। Sir, I have done my master MSc Zoology from GC University Faisalabad. Now Okay. मैं एंट्री कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, तो पीपीएससी की तैयारी करने के लिए ज्वाइन किया ये सेशन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टर नदीम इजाज। अच्छा, माइक अपना म्यूट कर दें, अनलेस यू हैव समथिंग टू से। माइक अपना म्यूट कर दें। जी, नदीम इजाज साहब। चलें जी, इंट्रोडक्शन आई गेस काफ़ी हो गए हैं, ठीक है। So far as your introduction is concerned, I am glad that you all are very educated, and as far as your degrees and your qualification are concerned, I'm really impressed that this class is
consists of such highly well qualified people. So this is an added advantage to you, because finally, when you clear the one paper and you sit for the interview, this qualification of yours, some of you are MPhil, some of you are masters and already working in some sector. So this will be an added advantage. Now, last thing before we begin the lecture, I want to share my introduction to you. I worked under the federal government in an attached organization as an assistant director. So currently I am preparing for FIA interview because my one paper was cleared. So I have been shortlisted for the next process. The reason we have made this session especially for you, because I have wide experience as far as one paper is concerned. So me and my team, we are well acquainted with all the dynamics of one paper and exactly what is required to go through this process. Now, let me clear to you one thing before we begin this thing. The first thing is that कि ये एग्जाम कोई इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम कोई IQ का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम सिर्फ टेक्निक का एग्जाम है. जो लोग पेपर क्लियर करके इंटरव्यू की स्टेज तक चले जाते हैं या साइकोलॉजिकल की स्टेज तक या उसके बाद जो भी प्रोसेस है वहां तक चले जाते हैं, या जो लोग अल्टीमेटली सीट विन कर लेते हैं, पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है. ठीक है, जो डिग्रीज आपने ली हैं, जो आप डिग्रीज ले रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, ये ज़्यादा मुश्किल काम है. वन पेपर ज़्यादा आसान है, लेकिन वन पेपर में अक्सर कैंडिडेट्स क्यों फ्लंक करते हैं या क्यों रह जाते हैं, उसमें फिर टेक्निक आ जाती है कि आपकी स्ट्रेटजी या टेक्निक में कोई इशू है. इसकी वजह से फिर जो है ना वन पेपर काफ़ी लोग हैंडल नहीं कर पाते. तो हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद, आपका यहाँ पे टाइम निकाल के मेरे साथ इंटरेक्शन करने का मकसद ये है कि आप वो टेक्निक्स और टूल्स आप पोजेस कर सकें जो अल्टीमेटली आपको फ़ायदा देंगे. देखो, इंफॉर्मेशन नोट्स में भी जो है अवेलेबल है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको गाइड बुक्स मिल जाएंगी और इस तरह से बेतहाशा मटेरियल मिल जाएगा. बट द थिंग इज़ कि मेरे साथ बैठने में और 1-1.5 घंटा लगाने में आपने यहाँ से गेन क्या करना है, यहाँ से आपने करना है कि जो टेक्निक्स हैं, जो स्ट्रेटजी है, वो हमने क्या लेके चलनी है, जो अल्टीमेटली डिस्टिंग्विश करेंगी बिटवीन दोज हु क्लियर एंड दोज हु फेल. ठीक है, तो इस सिलसिले में मुझे जिम्मेदारी दी गई है आपके पाकिस्तान अफेयर्स की, जिसमें आपकी ज्योग्राफी आती है और आपके दूसरे पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन, मोस्टली हिस्ट्री जिसमें है, तो वो हम क्लियर करेंगे और हमने उसको टैकल करना है हेड ऑन के साथ. साइड बाय साइड हमने आपके पेपर चलाने हैं कि एग्जामिनर वन पेपर में स्पेशली आपकी FPSC और PPSC में स्पेशली एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहे हैं और रिक्वायरमेंट क्या है. साथ साथ हमने आपके जो है वो आपके सिलेबस के कंटेंट्स जो हैं वो हमने चलाने हैं. तो इस तरह हमने जो है ना चीज़ों को सिंक्रोनाइज करके चलना है ताकि अल्टीमेटली हम विद इन दैट बाउंड्री भी रहें और एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल कर सकें. तो आई वुड अप्रिशिएट कि जो भी मैं चीज़ें कहूँगा या आगे हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आई वुड अप्रिशिएट कि आप किसी जो है नोटबुक पे जस्ट एज अ टॉकिंग पॉइंट्स आप वो मेंशन कर लें, ताकि बाद में फिर लेक्चर मेरा जब आप मतलब अपने नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो है वो यू विल हैव एवरीथिंग इन कंसाइज फॉर्म. तो अच्छा, वन पेपर का जो स्टाइल है, वन पेपर का स्टाइल मैं जनरली आपसे डिस्कस कर दूं. FPSC और PPSC की जहां तक बात है और बाकी जो टेस्टिंग सर्विसेज के हैं एग्जाम्स, एग्जामिनर का स्टाइल ये है कि एक तो आप किसी लेक्चरशिप का एग्जाम देने नहीं जा रहे. ठीक है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान अफेयर्स जो है वो आपसे उस लेवल का नॉलेज डिमांड नहीं करता जो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से डिमांड करता है. आपसे वो जनरली एक आपने फ्लो में चीज़ों को पढ़ा हो, आपको फैक्ट्स जो मोटी मोटी बातें हैं उनके फैक्ट्स पता हो, ठीक है, प्रिसाइज चीज़ें आपको पता हो, दैट इज़ ऑल व्हाट ही रिक्वायर्स, कि आपको ओवरऑल चीज़ों का नॉलेज हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में वो आपको नहीं लेके जाएगा, नंबर 1. ठीक है, और साथ आपको चीज़ों का सीक्वेंस पता हो. तो प्राइमरी एक्सपेक्टेशंस एग्जामिनर की ये हैं, ठीक है, जिसे हमने फुलफिल करना है. तो व्हाट आई हैव डन इज के मैंने आपके तमाम के तमाम मतलब ऑलमोस्ट जितने भी आपके पेपर्स हैं वो मैंने गो थ्रू आउट किए हैं. ठीक है, फिर उसमें से मैंने मैच किया कि
एग्जैक्टली जो पढ़ने वाली चीज है वो क्या है, ठीक है। बट वन थिंग कि माई लेक्चर इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द बुक। इट डज नॉट मीन कि आपने मेरा लेक्चर ले लिया है तो आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको जो हेल्पिंग मटेरियल आपको विजन एकेडमी प्रोवाइड कर रही है उसकी आपको जरूरत नहीं है। इट डज नॉट मीन दैट। माई लेक्चर इज फॉर यू ताकि आप चीज़ों को एक फ्लो बना सकें, चीज़ों को कंसिस्टेंसी से एक वो पैटर्न बना सकें कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ इवेंट्स एंड आइडियाज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू कि आपने दोनों को सिंक्रोनाइज करके चलना है। अच्छा, अब शुरू हम कहाँ से करेंगे? शुरू हम वहाँ से करेंगे फ्रॉम अ वेरी वेरी अर्ली एरा, फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम इसे लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला अप टिल पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, सॉरी। तो उसके दरमियान फिर हम डिस्कस करेंगे तमाम के तमाम पैरामीटर्स ऑलमोस्ट जो कि आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो लेट्स बिगिन आवर फॉर्मल लेक्चर, ठीक है। अच्छा, आपके सिलेबस में जो एग्जामिनर जहाँ से शुरू होता है ना, एग्जामिनर शुरू होता है आपके सिलेबस में फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। अच्छा, अब मैं आपको जनरली बता दूं कि दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस वो थी, दे ऑल एग्जिस्टेड अराउंड ग्रेट रिवर्स। डू यू एग्री और नॉट? अच्छा, उसमें से ग्रेट रिवर्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल द इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज अराउंड विच रिवर? रिवर नाइल, दरियाए नील के इर्द गिर्द जो थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, ठीक है। इसी तरह जो है वो गंगेटिक सिविलाइजेशन हम जिसे कहते हैं, गंगेटिक सिविलाइजेशन, दरियाए गंगा के आसपास जो है जो टाउन्स और सिटीज जो बस रहे थे, ठीक है, गंगेटिक सिविलाइजेशन। इसी तरह दरियाए सिंध या जिसे हम इंडस रिवर कहते हैं, इंडस रिवर के राउंड अबाउट जो है या इसके आसपास जो सिविलाइजेशन या सिटीज, जो अर्बन सेंटर्स जो बस रहे थे, collectively they are known as a civilization. What sort of civilization? Indus Valley civilization. What is important इसमें? important इसमें ये है कि आपको पता हो कि यहाँ पे cities कौन सी थी, फिर आपको पता हो कि ये era कौन सा था। अच्छा, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपको BC और AD का डिफरेंस पता है? क्रिश्चियन कैलेंडर में अगर हम चले जाएं, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन बिफोर क्राइस्ट एंड मतलब जो साल चल रहा है, दिस इज 2020 क्रिश्चियन एरा। Do you know कि what does 2020 BC means and this 2020 CE means? किसी को नहीं पता तो भी बता दे ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज आई विल मूव ऑन। BC का मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। तो अगर मैं कहता हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी इन द ईयर 3000 to 2000 BC, इसका मतलब है कि हजरत ईसा की पैदाइश से 2000 से 3000 साल पहले इंडस रिवर के आसपास जो सिविलाइजेशन थी, इट वाज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा है साहिवाल के पास। अच्छा, जो मैं इंफॉर्मेशन साथ साथ बोलूंगा ना, ये कोई यूजलेस इंफॉर्मेशन नहीं है। यू कैन एक्सपेक्ट कि मेरे एक एक सेंटेंस जो है दैट इज एन MCQ, एंड इनफैक्ट PPSC में उसने पूछा हुआ है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन किस जो है बिग सिटी के पास है। सो द आंसर इज साहिवाल। दो बिग सिटीज हैं, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है। अच्छा, मोहनजोदाड़ो जो थी वो है लाड़काना के पास और हड़प्पा जो है वो है साहिवाल के पास, ठीक है। ये सिटीज ऐसे थी कि इट वाज अराउंड रिवर इंडस, ठीक है, रिवर इंडस के साथ जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उनके साथ, और मोहनजोदाड़ो तो डायरेक्टली इंडस रिवर के सबर्ब्स में। अच्छा, अब होता ये है कि ये अपने ज़माने के न्यूयॉर्क, पेरिस, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सीवरेज सिस्टम था, यहाँ पे वाटर की फैसिलिटी थी, ठीक है, और इस तरह से अर्बन सेंटर्स थे। फिर इन्वेजन्स होती हैं एंड दीज सिटीज वर लॉस्ट, सही है। फिर नेक्स्ट ये सिटीज डिस्कवर कब होती हैं? ये डिस्कवर होती हैं ब्रिटिश के दौर में, यानी कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रेलवे ट्रैक लेकर आ रहे होते हैं, सो दे डिस्कवर समथिंग अनयूजुअल इन द ग्राउंड। उसको जब वो एक्सकेवेट करते हैं, सो दे डिस्कवर दीज सिटीज। पेपर में पूछता है कि व्हेन वर दीज सिटीज जो है डिस्कवर्ड? द आंसर इज मोहनजोदाड़ो वाज डिस्कवर्ड इन 1922, हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड इन 1921। ये आपके नोट्स आ गए, ठीक है, आपने मैं बोल रहा हूँ, आपने जस्ट पॉइंट्स बना के उसके वो साथ लिख लिए, ठीक है।
अच्छा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर ये होता है कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, हमेशा से इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट हैज बीन द विक्टिम ऑफ इन्वेजन्स, फॉरेन इन्वेजन्स। इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से इन्वेजन्स ही रही हैं। मिसाल के तौर पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को रिप्लेस किया आर्यन इन्वेजन है, आर्यंस, ठीक है, आर्यन इन्वेजन ने फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ में कौन से इलाके हैं? नॉर्थ में सेंट्रल एशिया है, अफगानिस्तान, ठीक है, इस टाइप के जो है इलाके, वहां से आर्यंस इन्वेट करते हैं और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको वो डिफीट कर देते हैं। सो आफ्टर 1000 ईयर्स, मतलब 3000 से 2000 ईयर बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके 1000 साल बाद आर्यंस इन्वेट करते हैं एंड द लोकल्स दे बिकम स्लेव्स एंड द आर्यंस फ्रॉम सेंट्रल एशिया दे बिकम द रूलर्स ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। जब आर्यंस यहाँ पे आते हैं और यहाँ के जो लोकल्स हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली आर्यंस दे आर अ रूलिंग रेस, और जो यहाँ के लोकल्स हैं वो बन गए यहाँ की सब्जेक्ट रेस। एग्री? तो आर्यंस यहाँ पे अपनी अपनी आप कह लें कि ब्लड की प्योरिटी को यहाँ पे रखने के लिए यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं? यहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम आप समझते हैं कि क्या जो है? इवन इन करंट इंडिया यू विल फाइंड के the Hindu society is divided into caste. For example, at the top there are Brahmins, फिर second level पे जो है Kshatriyas आ जाते हैं, फिर Vaishyas आ जाते हैं third पे, and Shudras at the very bottom. So this caste system was introduced by the Aryans ताकि intermarriages जो हैं वो within that जो है खास सर्कल हो, और जो लोग यहाँ के वो एक्सक्लूड हो जाए ताकि आर्यन ब्लड प्योर रहे। यू एग्री विद दिस? पीपीएससी में और वन पेपर में आपसे क्वेश्चन वो क्या पूछता है? वन पेपर में वो जो है पूछता है कि कास्ट सिस्टम जो है उसकी हायरार्कीज क्या है। पे आगे आपके ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स कौन है? प्रीस्ट। सेकंड पे आपके आगे क्षत्रियास, क्षत्रियास आपके कौन है? वॉरियर्स। थर्ड पे आपके आगे वैश्यास, वैश्यास क्या है? मर्चेंट क्लास, ये जो बिजनेसमैन है, ठीक। लास्ट पे आपके आगे शूद्रास, शूद्रास कौन है? जो लोकल नॉन आर्यन पॉपुलेशन थे यहाँ पे, ठीक है। और इवन कि आप इंडिया में भी कहीं जगह पे आप देखें शूद्रास जो हैं उनके खिलाफ बहुत सी डिस्क्रिमिनेशन होती है एंड दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू द अदर सोसाइटी इन सम प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। अच्छा, ये थी आर्यन इन्वेजन। आर्यंस के बाद यहाँ पे कौन इन्वेड करता है? यहाँ पे इन्वेड करते हैं ग्रीक्स। यहाँ पे इन्वेड करते हैं। अब मैं नाम लेने लगा हूँ तो वहां से आपको शायद आइडिया हो कि अब मैं किस बंदे की बात करने लगा हूँ या किस एरा में अब हम आ रहे हैं। आफ्टर यहाँ पे होती है ग्रीक इन्वेजन अंडर हुज लीडरशिप, अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर आजम आपने मे भी नाम सुना हो, तो अब हम आ रहे हैं सिकंदर आजम के दौर पे। सिकंदर आजम कहाँ से होता है? पीपीएससी में वो पूछता है कि फ्रॉम वेयर डज ही बिलोंग? ही बिलोंग्ड फ्रॉम मैसेडोनिया। मैसेडोनिया अभी एक कंट्री है, ठीक है, बट हिज टेरिटरी वाज ग्रीक टेरिटरी। तो पेपर में बाज़ात वो पूछता है कि फ्रॉम वेयर डिड ही बिलोंग? अगर तो ऑप्शन हो मैसेडोनिया, दैट इज करेक्ट। अगर मैसेडोनिया ऑप्शन नहीं है देन ग्रीक इज द राइट ऑप्शन। आप एग्री कर रहे हैं कि ये चीज किस तरह सेंस बना रही है? क्योंकि उसकी टेरिटरी जो है दैट वाज ग्रीक, ठीक है, बट एक्चुअली द प्लेस फ्रॉम वेयर ही बिलोंग दैट वाज मैसेडोनिया। अच्छा, इसके वालिद साहब का नाम होता है फिलिप ऑफ मैसेडोन, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एक फेमस बंदा है, वो इसको इनिशियली ट्यूटर करता है। ट्यूटर का मतलब है कि इसको पढ़ाता है या इसका टीचर होता है। तो कैन यू गेस के अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो टीचर है या उसका क्या नाम है? क्योंकि ये भी एक दफा पेपर में उसने पूछा हुआ था। एनी आइडिया? अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो टीचर है हिज नेम इज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का आपने शायद नाम सुना हो, एंड ही इज सच has ruled the intellect of mankind for over 2000 years, ठीक है।
very very big influence on mankind. So Aristotle was the teacher of Alexander the Great. अच्छा, अब वो इनडायरेक्ट सवाल बाज़ बना लेता है, वो कहता है कि जी एरिस्टोटल का टीचर कौन है? एरिस्टोटल का टीचर है प्लेटो, ठीक है, एरिस्टोटल देन प्लेटो। अच्छा, प्लेटो का टीचर कौन है? प्लेटो का टीचर है सोक्रेटिस, सुकरात जैसे हम मतलब नॉर्मली हम जानते हैं, तो चेन के बनते सोक्रेटिस, प्लेटो एंड देन एरिस्टोटल। फाइनली एरिस्टोटल टीच कैसे करता है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो इराक से होके, इराक से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर कंदहार, काबुल, फिर खैबर पास के थ्रू होके वो इधर आता है, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अच्छा, वो किस दौर में यहाँ पे आता है? वो दौर होता है 326 बीसी। इसका मतलब है 326 बीसी का मतलब है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 326 साल पहले, तो डेट होएगी कैलेंडर में 326 बीसी। 326 बीसी में यहाँ पे आता है। दरियाए झेलम के पास इसकी जंग होती है किसे? राजा पोरस से, जो यहाँ का लोकल लीडर होता है या किंग होता है। राजा पोरस ही फाइट्स अलेक्जेंडर द ग्रेट बैंक ऑफ रिवर झेलम। अब पेपर में वो सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनाता है, वो कहता है कि दरियाए झेलम का ग्रीक नेम क्या है? सो रिवर झेलम इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ हाइडैप्सिस, HYDASPES, क्योंकि यहाँ पे होती है बैटल ऑफ हाइडैप्सिस, ठीक है, इन 326 बीसी। उसमें विक्ट्री किसके पास जो है वो आती है अलेक्जेंडर के पास, और राजा पोरस को वो डिफीट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अलेक्जेंडर जो है ना इसी एरिया तक बेसिकली रहता है, मॉडर्न डे पाकिस्तान तक मोस्टली उसका एडवेंचर रहता है। फिर वो टर्न करके अपनी सारी मिलिट्री को वापस वो लेके जा रहा होता है, तो ही रीचेस इराक, प्रेजेंट डे इराक। वहां पे शहर है बाबुल का शहर, जिसे हम कहते हैं सिटी ऑफ बेबीलोन, और वहां पे सवाल बनाता है PPSC में। आवाज आपको आ रही है कि नहीं? सर ना थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होती है कभी कभी। अब क्लियर है आपको? तो फिलहाल तो क्लियर है, आगे फिर देखते हैं। जी, आवाज क्लियर है आपको? सर अभी तो क्लियर है। ठीक है, चलिए बता दिया करें मुझे। तो पढ़ा रहे हैं, मतलब ये जो जस्ट पॉइंट्स बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, या इनको ओपन करके सारा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे? सॉरी, नोट्स के अंदर मैं सर पूछ रहा हूँ, आप ये पॉइंट्स जो बता रहे हैं, मतलब हिस्ट्री के पॉइंट्स है चंद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं या इनकी ब्रीफली डिस्क्रिप्शन होगी नोट्स के अंदर? नहीं, देखो ये पैरामीटर्स हैं हमारे, ठीक है, ये हमारी बाउंड्रीज हैं जिसमें हमने है कि हमने जो है ना अपना आप कह रहे हो कि तैयारी करनी है, ठीक है। ये मैं आपको सीक्वेंस और स्टोरी वाइज बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख लें कि जितने भी वन पेपर हैं उसमें एग्जामिनर इन्हीं डिटेल्स के आसपास प्ले करता है, इससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? हम एक जनरल फ्रेमवर्क स्टडी कर रहे हैं। आपका एग्जामिनर जो है वो उस किस प्लेग्राउंड में आपको कराएगा और उसकी क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो उसमें तो एक टॉपिक लिए एक क्लास भी कम है, आप एग्री कर रहे हैं? एक टॉपिक के लिए एक क्लास भी अगर हो जाए तो दैट इज स्टिल इनसफिशिएंट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमने एंटायर हिस्ट्री पढ़नी है कि वन पेपर के लिहाज से एग्जामिनर आपसे क्या चीजें एक्सपेक्ट करेगा, वो ये सारी चीजें हैं, सही है। तो बाद में बुक भी रेकमेंड करूंगा, अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए बुक भी कोई पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उसमें फिर डिटेल लिखी है, यू कैन गो एज डीप एज यू वांट, लेकिन एज फार एज माय एक्सपीरियंस एंड इफ यू सी ऑल द पेपर्स दैट हैव बीन कंडक्टेड सो फार, these are the things that have been asked. So this is our strategy of preparation. अच्छा, मैं कहाँ तक पहुंचा था? मैं पहुंचा था इराक के शहर बाबुल तक। बाबुल तक वो पहुंचता है जिसको हम कहते हैं मॉडर्न डे में सिटी ऑफ बेबीलोन। पेपर में बाज़ वो सवाल जो है बनाता है कि हैंगिंग गार्डन्स वो किस शहर में थे, सो दैट इज बेबीलोन।
बेबीलोन में अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ही एक्सपायर्स और बहुत यंग एज में अराउंड 33 to 32 ही डाइज, ठीक है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टॉपिक से यही चीजें उसने आज तक पूछी और इन्हीं से पूछेगा, मतलब एज फार एज माय प्रेडिक्शन इज कंसर्न। अच्छा, अलेक्जेंडर द ग्रेट के एरा के बाद कौन सा एरा आता है? वो आता है मौर्यन डायनेस्टी। आपने इंडिया की फिल्म देखी होगी अशोका, ठीक है। तो अशोका वॉज फ्रॉम मौर्यन एम्पायर। अच्छा, अब होता क्या है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, उसको यहाँ से पावर से निकालने के लिए जो बंदा एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है उसका नाम होता है चंद्रगुप्ता मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्ता मौर्य जो है वो अलेक्जेंडर को यहाँ से एग्जिट कराने में या भेजने में उसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसकी हेल्प कौन करता है? उसकी हेल्प करता है चाणक्य। ये इंपॉर्टेंट नेम है। चाणक्य कौन है? चाणक्य होता है अपने जमाने का प्रीस्ट, एक ब्राह्मण होता है, ठीक है, ही इज अ प्रीस्ट। तो चंद्रगुप्ता मौर्य, क्योंकि अलेक्जेंडर द ग्रेट चला जाता है, यहाँ पे एक पावर वैक्यूम आ जाता है, तो अल्टीमेटली चंद्रगुप्ता मौर्य ही एस्टैब्लिशेस द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर जो है एस्टैब्लिश बाय चंद्रगुप्ता मौर्य। अच्छा, चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा होता है बिंदुसारा। बिंदुसारा का बेटा होता है अशोका मौर्य। बिंदुसारा ने कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, तो हिस्ट्री ओनली रिमेंबर्स, मोस्टली हिस्ट्री व्हाट आई विल से रिमेंबर्स चंद्रगुप्ता मौर्य एंड अशोका। पेपर में वो आप इस चीज को समझता है एग्जामिनर, पेपर में समटाइम ही आस्क कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अशोका एंड चंद्रगुप्ता मौर्य। तो इनमें दादा पोते का रिलेशनशिप है, फादर सन का नहीं है, बिकॉज द फादर ऑफ अशोका इज बिंदुसारा। अच्छा, फिर वो एक और ट्विस्ट करके क्वेश्चन बनाता है कि चाणक्य जो है, ठीक है, ही इज द ऑथर ऑफ विच बुक? चाणक्य जो है वो लिखता है किताब का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किताब है, ये किताब होती है स्टेट क्राफ्ट पे। इसका मीनिंग समझते हैं? व्हाट इज स्टेट क्राफ्ट? स्टेट क्राफ्ट का मतलब है कि रियासत कैसी चलानी चाहिए, ठीक है, व्हाट इज द यू कैन से व्हाट शुड बी द पब्लिक पॉलिसी ऑफ अ स्टेट, और रियासत के जो है वो किस तरह उसकी पॉलिसी बनानी चाहिए, स्टेट क्राफ्ट के बारे में किताब है। तो समटाइम्स वो पूछता है कि अर्थशास्त्र किस टॉपिक पे किताब है, समटाइम्स वो पूछता है इसके ऑथर कौन है, समटाइम्स वो पूछता है कि ये किताब किसने लिखी है, ठीक है। 3 ways ऑफ आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, बुक का नेम रिपीट कर दीजिएगा। अर्थशास्त्र किताब है, लिखी चाणक्य ने। चाणक्य कौन होता है? चंद्रगुप्ता मौर्य की हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग एन एम्पायर, ठीक है। तो वो स्टेट क्राफ्ट पे किताब लिखता है और उसका नाम है अर्थशास्त्र। यहाँ तक ही वो जाएगा, इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं वो जाएगा, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्ता मौर्य के बाद बिंदुसारा के बाद अशोका मौर्य। अशोका मौर्य, इन तीनों में से इंपॉर्टेंट है अशोका मौर्य, क्योंकि सवाल जो है मोस्टली बनेंगे अशोका मौर्य से, ठीक है। अच्छा, अशोका मौर्य के बारे में इंपॉर्टेंट क्या चीज है? हम पढ़ रहे हैं मौर्यन एम्पायर। नाउ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इतना का डाइवर्स है और इतनी की डाइवर्सिटी है इसमें कि हार्डली देयर हैज बीन एनी एम्पायर or any political power that has controlled the subcontinent as a single entity। मतलब कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा सब कॉन्टिनेंट में जो पूरे सब कॉन्टिनेंट पे जिसने रूल किया हो, पॉलिटिकल यूनिटी प्रोवाइड की हो। मौर्यन एम्पायर, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एज फार एज रिकॉर्डेड हिस्ट्री इज कंसर्न्ड, फॉर द फर्स्ट टाइम मौर्यन एम्पायर वाज एबल टू कंट्रोल द एंटायर इंडिया। मिसाल के तौर पे फ्रॉम अफगानिस्तान टू बंगाल एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इनका कैपिटल होता है, इंडिया में शहर है पटना, उसका पुराना नाम है पटालीपुत्रा, वो इनका कैपिटल होता है। अच्छा, साउथ पे आप इंडिया के देखेंगे तो उनकी कोस्टल स्ट्रिप पे एक इलाका है बाय द नेम ऑफ कलिंगा। अशोका ही हैड अ ग्रेट एपेटाइट टू कॉन्कर दैट पीस ऑफ लैंड। उसको वो फतह करने के लिए अशोका जो है बहुत ज्यादा जंग लड़ता है और फाइट करता है, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड शेड, अल्टीमेटली ही विंस, ठीक है। मगर वो जो ब्लड शेड है, वायलेंस है और खून खराबा, वो अशोका की लाइफ को चेंज कर देता है। सो फ्रॉम अ वायलेंट किंग ही टर्न्स हिमसेल्फ इनटू अ पीसफुल किंग। बुद्धिज्म एम्ब्रेस कर लेता है, स्ट्रेट मजहब बना देता है बुद्धिज्म को,
और अल्टीमेटली फिर वो वेलफेयर के काम करता है। फॉर एग्जांपल एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल, ठीक है, ट्रैवलर्स के लिए शेड्स और वाटर फैसिलिटीज और इस तरह की पब्लिक जो है सर ना वो। अशोका मौर्य के बारे में थोड़ी सी मजीद कर दीजिएगा कि जो इसने लड़ाइयाँ लड़ी और कौन सी और किस कैपिटल पे वो जो है कब्जा करना चाहता था, वो जरा दोबारा थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया का जो मशरकी कोस्ट है ना, जी जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, उनका मैप आप देखेंगे ना तो इस तरह है, फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला। उनका जो ईस्टर्न है उसके कोस्टल स्ट्रिप पे जो टेरिटरी है दैट इज नोन एज कलिंगा। ओके, वो जो टेरिटरी है, ठीक है, वो टेरिटरी रिबेल करती है अगेंस्ट द मौर्यन एम्पायर। तो उस टेरिटरी को कॉन्कर करने के लिए अशोका मौर्य जो है कैंपेन लॉन्च करता है, मिलिट्री कैंपेन। अल्टीमेटली अशोका मौर्य जो है विन तो कर जाता है, लेकिन उस कैंपेन में बहुत ज्यादा खून खराबा होता है, बहुत ज्यादा ब्लड शेड और वायलेंस होती है। उसके जो इम्पैक्ट अशोका पे आता है, इम्पैक्ट ये आता है कि वो थिंक करता है कि मैं जो सब कुछ कर रहा हूँ क्या ये ठीक है कि गलत है। वो उसकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है और वो बहुत ही पीसफुल बादशाह बन जाता है, जिस तरह वो मूवी में भी उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करता है वो और स्टेट मजहब बना देता है, क्योंकि ये सवाल उसने पूछा हुआ था कि स्टेट मजहब अशोका के दौर में स्टेट रिलीजन कौन सा था। सो बुद्धिज्म इज द राइट आंसर। स्टेट पैटर्नेज मिलती है, फिर उसके बाद वो वेलफेयर के काम करता है। नाउ द डिटेल ऑफ द प्रिसाइज वेलफेयर वर्क्स दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज वन पेपर है, यू हैव टू सी दैट थिंग के जो ऑप्शन में फिट हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसमें दैट इज सफिशिएंट टू नो कि ही क्रिएटेड हॉस्पिटल्स फॉर द एनिमल्स एंड शेड्स फॉर द ट्रैवलर्स, इस तरह की पब्लिक वेलफेयर काम, ठीक है। अच्छा, अशोका मौर्य का दौर होता है फ्रॉम 273 टू 232, ऑलमोस्ट 40 इयर्स वो रूल करता है, ठीक है। अच्छा, अशोका के बाद जो है ना देयर इज अगेन इन्वेजन इन द सब कॉन्टिनेंट, और आपने जनरल रूल याद रखना है कि सब कॉन्टिनेंट में हमेशा इन्वेजन्स वो हुई हैं नॉर्थ से। सिर्फ अंग्रेज और अरब्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, दे केम फ्रॉम साउथ। अंग्रेज जो है वो पानी के जरिए, मतलब पानी के रास्ते के जरिए आए थे फ्रॉम द इंडियन ओशन एंड लेकिन तमाम की तमाम इन्वेजन्स जो हैं सब कॉन्टिनेंट में वो हुई हैं नॉर्थ से, ठीक है। नॉर्थ से मतलब है सेंट्रल एशिया से, अफगानिस्तान से। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जाहिर है मैं आपको इन्वेजन्स की आगे बताऊंगा तो आप देखेंगे कि मतलब द क्वेश्चन इज कि व्हाई डज एवरीवन वांट्स टू कम टू इंडिया और सब कॉन्टिनेंट? हर बंदा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट क्यों जाना चाह रहा है, या यहाँ पे ऐसा क्या है कि दिस इज द फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ एवरी कॉन्करर? जी Sir, due to natural resources. सर नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से वहाँ पे मतलब एवरीथिंग जो है वो मिल जाती है, फाउंड, मतलब जो भी रिसोर्सेज उस जमाने में हुआ करते थे कि ये चीज़ अगर हम पालेंगे तो हम एक बहुत बड़ी रियासत कायम कर सकते हैं, इस चीज़ की वजह से। ठीक है, मतलब देखो इंडिया को जो है ना गोल्डन स्पैरो भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पाइसेस हैं, यहाँ पे दिस लैंड हैज वेल्थ टू ऑफर, यानी कि देखें ना फ्लैट लैंड है, यहाँ पे रिवर्स हैं, मॉनसून रेनफॉल है, फिर हर तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। तो जो भी एम्पायर इसको कंट्रोल करेगी तो ऑब्वियसली वो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएगी, तो टैक्स रेवेन्यू जो है वो एम्पायर को एनरिच कर देगा। एंड दिस थिंग वाज नोन टू द कॉन्करर्स। तो उनका आप देखें ना कि जो अरब्स आ रहे हैं दे आर फ्रॉम डेजर्ट एरियाज, जो सेंट्रल एशियंस आ रहे हैं उनका आप क्लाइमेट देख लें, दे आर लैंड लॉक्ड, वहाँ पे क्लाइमेट एक्सट्रीम है। फिर आप गोरों को देख लें, वो यहाँ पे आए बिकॉज दे डेवलप्ड इंडस्ट्रीज एंड दे नीडेड रॉ मटेरियल फॉर दैट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे वांटेड टू ट्रेड इन द ईस्ट। तो इंडिया जो है ना मतलब इट हैज मेनी मेनी थिंग्स टू ऑफर इन टर्म्स ऑफ जो है एट दैट टाइम इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ। तो जाहिर है एग्रीकल्चर दौर था उस वक्त। तो दिस इज द प्राइमरी रीजन व्हाई एवरीवन ट्राइड टू कॉन्कर इंडिया, ठीक है। तो अच्छा अशोका मौर्य के बाद जो दौर आता है ना, अशोका मौर्य का पीरियड दरमियान में एक इंटरमीडिएट पीरियड आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है मुस्लिम इन्वेजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। वो जो इंटरमीडिएट पीरियड है उसमें जो चीज पढ़ने वाली है वो ये जस्ट है कि सब कॉन्टिनेंट में अशोका के बाद जो नंबर ऑफ इन्वेजन्स होती हैं वो कहाँ से होती हैं और कौन कौन सी हैं। तो उसमें यू जस्ट हैव टू नो द सीक्वेंस ऑफ इन्वेजन्स।
तमाम की तमाम इन्वेजन जो हैं वो नॉर्थ से हुई। अशोका मौर्य का दौर होता है फ्रॉम 273 टू 232 बीसी, ठीक है, 232 बीसी, ठीक है। इसके बाद 200 बीसी पे आप आ जाएं, आफ्टर 30 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 30 इयर्स सिंस अशोका लेफ्ट, द बैक्ट्रियन ग्रीक्स फ्रॉम द नॉर्थ वो इन्वेड करते हैं, 1। फिर उसके बाद 130 बीसी में स्काइथियंस, ये अच्छा ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उसने पेपर में पूछे हुए एक दफ़ा कि वाइट हंस कौन थे, स्काइथियंस कहाँ से थे। जस्ट उसने उनका मेन पूछा हुआ है कि उनको आइडेंटिफाई करें कि वो किस एरिया से थे या किस सन में उन्होंने इन्वेड किया, यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज द बैक्ट्रियन ग्रीक्स, दे इन्वेडेड इन 200 BC, and then the Scythians in 130 BC, and after them the Kushanas in 170 AD, 200 130 BC, जीरो डेट हो गई। फिर उसके बाद कैलेंडर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, जस्ट टू बी श्योर कि आपको फिर आगे मतलब डेट चेंज हो जाती है फ्रॉम BC टू AD, ये आपको पता है डिफरेंस के डेट्स किस तरह चेंज हो रही हैं? नहीं पता तो बता दे अभी ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप। अच्छा, कुशनास के बाद जो हैं वो आते हैं वाइट हंस। वाइट हंस ये बेसिकली ट्राइब्स होते हैं जो नॉर्थ से इन्वेड करते हैं। फिर लास्ट इन द लिस्ट इज द वाइट हंस, ये इन्वेड करते हैं 484 AD में, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम से तकरीबन 250-300 साल पहले यहाँ पे इन्वेड करते हैं फ्रॉम द नॉर्थ, ठीक है। इसी तरह ही इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इन्वेजन देखता रहता है, ठीक है। नाउ फाइनली इट हैपन्स के we are moving to the Muslim era. In 1712 मोहम्मद बिन कासिम जो है वो यहाँ पे इन्वेड करता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को। इन्वेड किस तरह करता है? इन्वेड करता है फ्रॉम द साउथ। नाउ दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड इन्वेजन फ्रॉम द साउथ। इससे पहले आप देख लें कि इन्वेजन कहाँ से होती हैं? नॉर्थ से होती हैं। ये पहली मुस्लिम इन्वेजन होती है फ्रॉम द साउथ होती है। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो लैंड करता है ऑन द सिंध कोस्ट, ठीक है। And from there he begins a wave of conquest. वो कहाँ तक जाता है अपनी इन्वेजन को लेके? वो जाता है मुल्तान तक। सर ये 1710 बताया या कुछ और? 1712 712। ओके सर जी, वो मुल्तान तक लेके जाता है अपनी जो टेरिटरी वो कॉन्कर करता है। अच्छा, उस वक्त वो कोई एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं करता, जस्ट यहाँ पे जो एरिया मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर करता है वो एक प्रोविंस बन जाता है। प्रोविंस किस एम्पायर का बनता है? अब अब्बासिद कैलिफेट का, क्योंकि ये जो टेरिटरी जो कॉन्कर करता है, बिकॉज मोहम्मद बिन कासिम इज अ जनरल ऑफ द अब्बासिद कैलिफेट, तो लिहाजा यहाँ पे जब वो कॉन्कर करेगा तो ऑटोमेटिकली ये टेरिटरी किसका प्रोविंस बन जाएगी? अब्बासिद कैलिफेट का। अब पेपर में वो सवाल ये पूछता है कि यहाँ पे जो टेरिटरी जो बनी है, ठीक है, जो प्रोविंस बना है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अल मंसूरा, फ्रॉम द सिंध कोस्ट टू मुल्तान। जो टेरिटरी या जो प्रोविंस मोहम्मद बिन कासिम अपने कंट्रोल के अंदर लेके आता है, दैट प्रोविंस और टेरिटरी इज नोन एज द एमिरेट ऑफ अल मंसूरा, ठीक है। इसका कैपिटल वो कहाँ एस्टेब्लिश करता है? इन सिंध देयर इज एन ओल्ड सिटी ब्रह्माबाद, ठीक है। ये आप कह लें हैदराबाद के पास है, ठीक है। तो वो कैपिटल होता है मोहम्मद बिन कासिम्स न्यू एमिरेट। अच्छा, अब पेपर में जब वो आपसे सवाल पूछेगा कि बाबुल इस्लाम किसे कहते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द आंसर? मोहम्मद बिन कासिम? नहीं, बाबुल इस्लाम मतलब गेटवे ऑफ इस्लाम, सिंध। यू आर राइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज आप माइंड में रखें कि पेपर में जब एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा होता है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सवाल में ऐसे हो कि वो बच्चा सवाल का जवाब दे सके जिसने चीजों को सीक्वेंस में पढ़ा है, जिसने चीजों को सीरीज में पढ़ा है। मतलब जस्ट कहीं से जो है वो पॉइंट्स नहीं पढ़ लिए, नोट्स नहीं पढ़ लिए, जस्ट मतलब तैयारी के लिए उसने चीजों को जो है ना एक ऑर्डर में पढ़ा हुआ है। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एग्जामिनर। तो उसमें जो आप मेन चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें से बाज़ औक़ात वो इनडायरेक्ट चीजें भी पूछता है। कि मिसाल के तौर पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि इस्लामिक कॉन्टैक्ट इन द सब कॉन्टिनेंट वाज थ्रू सिंध,
तो यहाँ से अगर क्वेश्चन डिराइव करे इस्लाम, तो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। अच्छा, सवाल है कोई? ठीक है। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम को आपको पता है कि ही इज कॉल्ड बैक, तो जब वापस जाता है तो यहाँ पे 2 गवर्नर्स मजीद अपॉइंट होते हैं। एफपी वो पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद यहाँ पे जो गवर्नर्स अपॉइंट हुए हैं उनका क्या नाम है। तो 2 इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जा चुके हैं वो। फर्स्ट इज यजीद बिन मुहल्लब। मोहम्मद बिन कासिम के बाद यजीद बिन मुहल्लब को अपॉइंट किया जाता है एज गवर्नर ऑफ सिंध। उसके बाद जो गवर्नर अपॉइंट होता है वो है हबीब बिन मुहल्लब। ठीक है। अब बाज़ वो कंफ्यूज करता है पेपर में आपको एमसीक्यूज में देके कि जी यजीद बिन मुहल्लब था या हबीब बिन मुहल्लब था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक दिस थिंग क्लियर, यजीद बिन मुहल्लब फर्स्ट गवर्नर आफ्टर मोहम्मद बिन कासिम एंड देन हबीब बिन मुहल्लब। सही है। अच्छा, ये थी फर्स्ट अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। मोहम्मद बिन कासिम वापस चला गया। एमिरेट जो है वो अल्टीमेटली मतलब आप कह लें कि उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। इट इज अगेन सब्जेक्ट टू अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ से जो है उस वक्त तक इस्लाम फैल जाता है सेंट्रल एशिया तक। ठीक है। तो सेंट्रल एशिया में जो कन्वर्टेड ट्राइब्स हैं वो अगेन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को अटैक करते हैं। तो नेक्स्ट जो फेज है हिस्ट्री में एज फार एज पाकिस्तान अफेयर्स इज कंसर्न, आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट फेज है उसमें भी इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को नॉर्थ से ही अटैक्स फेस करने पड़ेंगे। ठीक है। मतलब until the Mughals, until the Britishers they come to India, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट जो है 1526 तक, ठीक है, वो नॉर्थ से ही उसको अटैक जो है ना वो आते रहे हैं। तो नाउ वी आर कमिंग टू विच एरा? वी आर कमिंग टू द एरा ऑफ महमूद गजनी। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री इज महमूद गजनी। So let's see कि what are the important things about him. गजनी क्या चीज़ है? महमूद गजनी क्यों कहते हैं हम? फिर मोहम्मद गौरी और इस तरह के जो नाम है, ये नाम कहाँ से है? इनका जो लास्ट नेम है ना, दे कॉरस्पॉन्ड टू अ प्लेस। अफगानिस्तान में शहर है गजनी, गजनी शहर है। ठीक है। गजनी शहर में एक बादशाह होता है अलबतगीन। अलबतगीन का स्लेव जनरल, अलबतगीन का जो गुलाम है उसका नाम होता है सबुक्तगीन। आई एम श्योर कि ये नाम आपने कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए या स्कूल कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ते हुए यू मस्ट हैव हर्ड दीज नेम्स। सबुक्तगीन वाज द स्लेव ऑफ अलबतगीन। सबुक्तगीन जो है उसका बेटा होता है महमूद गजनी। ठीक है। महमूद गजनी जो है ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स और अल्टीमेटली ही बिकम्स किंग इन 997। ये डेट नहीं पूछेगा लेकिन जस्ट आपको पता हो कि हम किस फेज की बात करें। इन 997 महमूद गजनी ही बिकम्स किंग। उसके बाद जो है वो 17 मेजर अटैक्स करता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। अब 17 के 17 याद होना आपको जरूरी नहीं है। ठीक है। एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है तो आपको एक एक चीज पता हो। वो ये जानना चाहता है कि आपने लिस्ट को जस्ट जनरली एक ओवरव्यू दिया है कि नहीं, और उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट, लास्ट एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको जस्ट पता हो। तो 17 अटैक्स करता है। ठीक है, महमूद गजनी। और रूट कौन सा यूज करता है? द ट्रेडिशनल रूट दैट हैज बीन यूज्ड बाय एवरी इन्वेडर, पासेस द खैबर पास, और उसके थ्रू वो फिर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में अटैक करता है। सबसे बड़ा अटैक उसका होता है in 1025 at सोमनाथ मंदिर। ये कहां पे है सोमनाथ मंदिर? एनी आइडिया? सोमनाथ मंदिर इंडिया में उस प्रोविंस में है जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं एक जमाने में, आई थिंक ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। तो सोमनाथ मंदिर है इंडियन गुजरात में। वहां पे सबसे बड़ा अटैक जो है मोहम्मद बिन कासिम का इन 1025 होता है सोमनाथ पे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस मंदिर में बहुत सी वेल्थ थी, बहुत ज्यादा वेल्थ थी। वो सारी की सारी वेल्थ जो है ऑलमोस्ट ही टेक्स इट बैक टू गजनी। अच्छा, नाउ मोहम्मद बिन महमूद गजनी वाज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन वेल्थ, ही
he was also interested in knowledge and learning. कहा यह जाता है कि उसके ज़माने में बहुत सारे scholars वगैरह, he took them back to Ghazni in अफगानिस्तान. तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स किसे कहते हैं, तो आपका गेस क्या उसमें होएगा? महमूद गजनवी. महमूद गजनी को किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं. और इसके ज़माने में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए. मिसाल के तौर पे पेपर में सवाल पूछता है कि अर्थ का रेडियस फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट ने जो निकाला वो कौन था? अल बेरूनी. अल बेरूनी ये आप कह लें कि जेलम के पास एक आई थिंक टाउन है या गांव है, नंदाना, ठीक है, वहां पे उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और वहां पे उसने अर्थ का निकाला रेडियस, और रेडियस था 6,339 किलोमीटर्स रेडियस उसने निकाला. ही फ्लरिश्ड इन द एरा ऑफ महमूद गजनी. फिर दूसरा स्कॉलर जो है जिसने बुक लिखी शाहनामा, ही वाज नोन बाय द नेम ऑफ फिरदौसी. ये सारे कहाँ पे थे? दे फ्लरिश इन द टाइम ऑफ महमूद गजनी. ठीक है, तो एक तो उसने वेल्थ बहुत इकट्ठी की, सेकेंडली स्कॉलर्स को बड़ा उसने अपलिफ्ट किया. सही है. अच्छा, तो इसी तरह जो है आफ्टर दिस गजनवी पीरियड, ठीक है, नेक्स्ट पर्सन इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री इज अच्छा, इसमें जो है ना वो एक चीज रह गई है कि दाता साहब जो हैं, जो लाहौर में बुजुर्ग, आपको पता है हजरत अली हजवेरी बाय द नेम ऑफ दाता साहब, ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम गजनी. वो भी गजनी शहर से आते हैं. तो इट जस्ट रिमाइंडेड मी कि दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. फिर महमूद गजनी जो है वो ही अपॉइंट्स his slave as the first governor of Lahore. आपने सुना होगा इलामा इकबाल का शेर, आई थिंक इलामा इकबाल का है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज. तो ये अयाज जो है ये कौन है? ये लाहौर के पहले गवर्नर हैं. ठीक है, और ये महमूद गजनी के स्लेव थे. तो एक दफ़ा ये भी उसने पूछा हुआ है कि who was the first governor of Lahore. ठीक है, appointed in the time of महमूद गजनी. तो मलिक अयाज is the proper name. गजनवी पीरियड के बाद जो है वो आप आ जाएं गौरिद पीरियड पे. गौरिद पीरियड का मतलब है कि अब हम बात करने लगे हैं मोहम्मद गौरी की. ठीक है, गजनी प्रोविंस है अफगानिस्तान में, दूसरे प्रोविंस का नाम है गौर. तो जो लोग वहां से थे, स्पेशली दिस मोहम्मद गौरी, ठीक है, ये नाम वहां से आता है. अच्छा, नेक्स्ट फेज जो है वो आता है, अब आप आ जाएं किस सन में? आप आ जाएं, यू कम टू 1175. ठीक है, 1175 हम कैलेंडर की डेट में. सर ये डेट, सॉरी, मोहम्मद गौरी ये 1193 में नहीं आए थे? नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट रेड इन्होंने की थी पाकिस्तान वाले इलाके में. फर्स्ट अटैक की जो डेट है ना वो 1170. आप इनकी ईयर ऑफ बर्थ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? इनकी डेट ऑफ बर्थ आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? नहीं सर, ये जब ये अपनी हुकूमत में आए थे मैं वो बता रहा हूँ. यानी कि ये जो गौरी सल्तनत थी सबसे पहले मोहम्मद गौरी आए थे, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, राम शाह, दमश, ये लोग सारे आए थे. मैं वहां पे आ रहा हूँ. आप सही कह रहे हैं, मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ. मोहम्मद गौरी जब अटैक करता है ना इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में. अच्छा, अब यहाँ पे जो सिलसिला यहाँ पे रहा है कि किसी मुस्लिम इन्वेडर ने इससे पहले, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, यहाँ पे जितने भी अटैक्स हुए, लोग यहाँ पे आते थे, अटैक करके सब कॉन्टिनेंट में वापस चले जाते थे. People were not interested in establishing an empire over here or the seat of government. First time होता ये है कि मोहम्मद गौरी जब अटैक करता है तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे एरियाज फतह करता है, शहर फतह करता है, तो वापस जाते हुए वो यहाँ पे अपने लिeutenant को या अपने स्लेव जनरल को यहाँ पे छोड़ जाता है. उस स्लेव जनरल का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट पर्सन होता है जो यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश करता है? यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है मुस्लिम डायनेस्टी. पेपर में वो पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट किसने एस्टेब्लिश की? सो दैट नेम इज
कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, अब क्योंकि आप देखें कि ये स्लेव है, ये गुलाम था, ठीक है, लेकिन बाय हिज ब्रिलियंस ही रोज टू द रैंक ऑफ अ जनरल। फिर उसके बाद इसको यहाँ पे जो है अपॉइंट कर देता है मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या एस्टेब्लिश करता है, यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी इन दिल्ली, ठीक है। बिकॉज ही इज अ स्लेव, तो उस डायनेस्टी को हम कहेंगे स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, क्योंकि ये डायनेस्टी इनिशियली किसने से जो है एस्टेब्लिश की, दैट पर्सन वाज अ स्लेव। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है 1206 में, ठीक है। उसके बाद इसके सक्सेसर्स आते हैं, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वेरियस पीपल कम, फॉर एग्जांपल कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, इसका दामाद जो है, सन इन लॉ, ठीक है। एंड देन फिर इस तरह जो हायरार्की है इनकी वो चलती है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी डेथ होती है 1210 में। ये इसकी मैनर ऑफ डेथ है, ये पोलियो खेल रहा होता है, तो अल्टीमेटली ही फॉल्स फ्रॉम अ हॉर्स एंड देन ही डाइज। अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, मैनर ऑफ डेथ, क्योंकि पेपर में पूछता है और बड़ी दफ़ा उसने पूछा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ही वाज प्लेइंग पोलो खेल रहा होता है घोड़े पे, एंड फॉल्स एंड ही डाइज। दो लोगों की मैनर ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। एक हुमायूं की वो पूछता है, मुगल एम्परर जो है हुमायूं, वो सीढ़ियों से गिर के मर जाता है, ठीक है। सेकेंडली ये इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका भी आप फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश जो है वो क्या करता है, वो अपना सक्सेसर जो अपॉइंट करता है। नॉर्मली आप ये देखें कि सक्सेसर जो है दे आर ऑलवेज अ मेल, मर्द को अपॉइंट किया जाता है, लेकिन इल्तुतमिश जो है ही डज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। वो अपॉइंट करता है किसको, वो अपॉइंट करता है रजिया सुल्ताना को। रजिया सुल्ताना उसकी होती है बेटी, यानी कि अपने बेटों को प्रेफरेंस मतलब नहीं देता, अपनी बेटी को प्रायोरिटी देके और उसको अपॉइंट करता है। पेपर में वो सवाल पूछता है कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर अ किंगडम वो कौन है, शी इज रजिया सुल्ताना, ठीक है। इसके बाद इनकी वो चेन चलती है, फिर दूसरे एम्परर्स आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि 1206 में एस्टेब्लिश होती है स्लेव डायनेस्टी, 1290 में ये फिनिश हो जाती है। फिनिश का मतलब क्या है, फिनिश का मतलब ये है कि अब जो है न्यू रूलर्स वो आ गए, दे आर मुस्लिम्स, ठीक है, दीज पीपल आर मुस्लिम्स बट दे डू नॉट क्लेम देमसेल्व्स टू बी सक्सेसर्स ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे डायनेस्टी आती है दैट इज द खिलजीज। खिलजीज आती हैं 1290 से लेके 1320 तक यहाँ पे रूल करते हैं खिलजीज। खिलजीज में आपने चीज़ें क्या याद रखनी है, खिलजीज में आपने सिर्फ और सिर्फ याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी को। ही इज़ द पर्सन जिसके बारे में अक्सर सवाल बनाए जाते हैं या जो रेलिवेंट है, ठीक है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ये कौन था, ये खिलजी रूलर था एक, और इसने इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ड्यूरिंग हिज पीरियड ही वाज अ वेरी वेरी ब्रूटल एम्परर, यानी कि इस दौर में जो मंगल्स हैं, मंगल्स आप समझते हैं कि चंगेज खान और मतलब जिस ट्राइब से वो था, ठीक है, दे वर अटैकिंग इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। तो इसने जस्ट जो है ना इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को उसकी डिफेंस बहुत अच्छी की, मतलब ही वाज अ वेरी ब्रूटल एम्परर एंड ही यूज्ड हिज ब्रूटैलिटी to basically safeguard the Indian subcontinent or his empire, ठीक है। अच्छा, खिलजीज के बाद आते हैं तुगलक्स। तुगलक्स जो हैं ये as a dynasty it was established by गयासुद्दीन तुगलक शाह in 1300। खिलजीज का इरा बता दें एक दफा फिर। जी, खिलजीज का है 1290 से 1320 तक, ठीक हो क्या। खिलजीज के बाद आते हैं तुगलक्स। तुगलक्स जो हैं एज अ डायनेस्टी ये एस्टेब्लिश कौन करता है, गयासुद्दीन तुगलक शाह, ठीक है। इसका जिस नाम इंपॉर्टेंट है कि फाउंडर कौन है। उसके बाद इसको सक्सीड करता है जूना खान इन 1325। अच्छा, जूना खान
इसके ये इंपॉर्टेंट क्यों, इसका नाम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपने सुना होगा एक फेमस ट्रैवलर का नाम इब्ने बतूता, सुना है आपने? जी सर। ये वो दौर है 1325, ये वो दौर है कि जिसमें इब्ने बतूता ही विजिट्स इंडिया इन द टाइम पीरियड ऑफ जुना खान, ठीक है। और यहाँ पे वो एज अ काजी, ठीक है, अपनी फंक्शंस डिस्चार्ज करता है, फिर उसके बाद वो आगे चला जाता है। बहुत फेमस ट्रैवलर है, मोरक्को से आता है एंड ही ट्रेवल्स अक्रॉस मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इसके बाद इसका सक्सेसर है फिरोज शाह, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 1351 टू 1388, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ये वो दौर है, तुगलक्स का वो दौर है जब यहाँ पे तैमूर बादशाह का सुना होगा आपने, ही वाज फ्रॉम द मंगोल्स जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें चंगेज खान और इस तरह के जो लीडर्स थे, वेरी रूथलेस एंड वेरी वेरी ब्रूटल, दे अटैक्ड दिल्ली इन द टाइम पीरियड ऑफ द तुगलक्स। और यहाँ पे जो है तकरीबन तमाम के तमाम टाउन्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है, ग्राउंड जीरो तक ले आते हैं। तो दिल्ली को भी जो है वो इट केप्ट ऑन बर्निंग फॉर 3 or 4 days, ठीक है। तो द एंटायर हिंदू पॉपुलेशन इट वाज किल्ड बाय तैमूर। तैमूर को पेपर में अगर तैमूर ना लिखा हो तो लिखा होएगा टेमरलेन, TAMERLANE, टेमरलेन, ठीक है, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि ये लंगड़ा था तो लेम वहां से निकला, तो दैट जॉइंट वर्ड इज टेमरलेन। अच्छा, ये डायनेस्टी जो है वो चलती है 1412 तक, ठीक है। 1412 से लेके 1451 तक यहाँ पे होती है सैयद डायनेस्टी। इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट ऐसा की पॉइंट है नहीं, सही है। सैयद डायनेस्टी के बाद जो है यहाँ पे जो डायनेस्टी आती है दैट इज द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1451 टू 1526। अच्छा, लोधी डायनेस्टी में आपने डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट नो वन इंपॉर्टेंट थिंग। इनके दौर में जो इंपॉर्टेंट वो बेसिकली क्या है जी, वो ये है कि इनका लास्ट एम्परर जो है फ्रॉम 1517 टू 1526, उसका आपको नाम लाजमी पता होना चाहिए, उसका नाम है इब्राहिम लोधी। फिर उसके बाद आपका एरा आ जाता है 1526। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी हो तो 1526 में ऐसा कौन सा वाकया इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में होता है जो कि अगले 200-250 साल तक इसकी हिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। 1526 में इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में क्या ऐसा वाकया है कि जो कि मतलब इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट? आइडिया? पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत होती है इसमें। बिल्कुल ऐसा है, थोड़ा सा जरा अगर मजीद इसे आप एक्सप्लेन कर दें तो इट विल बी गुड। इसमें जो बाबर है वो बिकम मुगल एम्पायर बनता है इस दौर के अंदर। अच्छा, उज़्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में शहर है फरगाना, ठीक है। वहां पे एक एम्परर होता है बाय द नेम ऑफ बाबर, ठीक है। बाबर जब बादशाह बनता है तो इसको फॉरबिड कर दिया जाता है कि ये अपने बाप की किंगडम को इनहेरिट नहीं कर पाता। फिर ये अटैक करता है और अपने बाप की जो किंगडम है उससे लेने की कोशिश करता है, बट ही इज अनसक्सेसफुल। तो अब आप ये देखें कि वो बादशाह है लेकिन उसके पास कोई सल्तनत नहीं, ही इज अ किंग विदाउट अ टेरिटरी। वो क्या करता है, वो अपनी किस्मत आजमाता है इन द साउथ में कौन है, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। तो टर्की से उस जमाने में ऑटोमन एम्पायर से, ठीक है, ही इंपोर्ट्स हैवी आर्टिलरी, क्योंकि आपको पता है कि टर्की इट वाज द पायनियर ऑफ गन पाउडर। तो वहां से वो गन पाउडर इंपोर्ट करा के एंड ही यूजेस द बिग कैनन्स, और ये लेके आता है कहाँ तक, पानीपत के मैदान पे। पानीपत का मैदान जो है वो दिल्ली से कुछ फासले पे है। तो कहा यह जाता है कि पानीपत का मैदान जो बंदा फतह कर लेता था तो दिल्ली ऑटोमेटिकली फेल इनटू हिज हैंड्स। तो 1526 में मुगल एम्परर, और यू कैन से येट टू बी मुगल एम्परर, और द फर्स्ट टू बी मुगल एम्परर बाबर, ही कम्स टू इंडिया। तो पानीपत के मैदान पे इसका आमना सामना किससे होता है,
इब्राहिम लोदी से। इब्राहिम लोदी कौन है? फ्रॉम लोदी डायनेस्टी, ये जो अभी हमने पढ़ा है। अच्छा, वहाँ पे देयर इज अ ह्यूज बैटल दैट टेक्स प्लेस, और वो बैटल जो है दैट इज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आपके सिलेबस में सवाल में जो आपसे पूछेगा वो 3 बैटल्स ऑफ पानीपत है कि फर्स्ट कब हुई, किसके दरमियान हुई, ठीक है, सेकंड कब हुई, किसके दरमियान हुई, थर्ड कब हुई, किसके दरमियान हुई, ठीक है। इन 3 बैटल्स के वो मतलब अक्सर वो पूछता है, वेरी फेमस बैटल्स। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, एम्परर बाबर he becomes the first ruler of मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश करता है। पिछली जो है वो चली जाती है सारी, जो मुस्लिम डायनेस्टी। अच्छा, बाबर के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? बाबर के बारे में ये पहली कब हुई थी पानीपत की लड़ाई, ये दोबारा से? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में जो फाइट होती है, दैट इज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर हो गया जी? अच्छा, बाबर जो है ये जस्ट 4 साल अपना पीरियड गुजारता है और 1530 में ही एक्सपायर्स, और इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1526 टू 1530, ठीक है। इसके जो मेमोयर्स हैं, ठीक है, जो बुक लिखी जाती है उसका नाम है तुज़्किरे बाबरी। ये नाम बड़ा कॉमन है और आप गेस भी कर लेंगे अगर वो इसका ऑथर पूछे। तुज़्के बाबरी, बाबरी फ्रॉम कॉरेस्पॉन्ड्स टू बाबर, ठीक है। अच्छा, बाबर के बारे में यही उसने पूछनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अब जो नेक्स्ट रूलर है उसके बारे में काफी सवाल बनते हैं उसके एरा से। नेक्स्ट रूलर जो आता है वो आता है एम्परर हुमायूं, ठीक है। हुमायूं जो है ही बिकम्स एम्परर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, ठीक है। बट इट हैपन्स के उसका सामना होता है, मतलब 1530 में वो बादशाह बनता है हुमायूं। 1540 में हुमायूं का मुकाबला होता है किससे? हुमायूं का मुकाबला होता है शेर शाह सूरी से। शेर शाह सूरी और हुमायूं की जंग होती है इन 1540। शेर शाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं को निकाल देता है बाहर, और वो इसी तरह ही फिरता रहता है, मतलब ही इज अगेन अ किंग विदाउट अ टेरिटरी, ठीक है। तो जब तक शेर शाह सूरी जिंदा रहता है वो हुमायूं को तख्त के करीब नहीं आने देता। दिस हैपन्स फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, 1540 से लेके 1555 तक, ठीक है। शेर शाह सूरी जो है यहाँ पे सूर डायनेस्टी, SUR, सूर डायनेस्टी जो एस्टेब्लिश करता है। पेपर में वो सवाल पूछता है कि इंडिया में रेवेन्यू सिस्टम, इसका पायनियर कौन है? दैट इज शेर शाह सूरी। सवाल वो बनाता है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी? हिज रियल नेम इज फरीद शाह, ठीक है। तो शेर शाह सूरी जो है यहाँ पे रेवेन्यू उसका जो नेम है ये भी इसका रियल नेम ही है, ये इसका और है कोई नेम? हुमायूं का जो नेम है ये भी रियल ही है या इसका भी कोई और नेम है? हुमायूं उसका नाम है, ये रियल ही है। हाँ जी। इसका भाई था कामरान, ठीक है। बल्कि वो भी मैं चले एंड पे मेंशन करूंगा, फिर आप जो आपको डिटेल बताऊंगा। अच्छा, 1555 में व्हाट हैपन्स के शेर शाह सूरी जो है उसकी डेथ होती है, वो गन पाउडर फट जाता है और उसमें वो ही डाइज, ठीक है। फिर 1555 में हुमायूं अगेन बिकम्स एम्परर, बट दिस इज कॉल्ड लक कि 1555 में बादशाह बन गया, ठीक है। शेर शाह सूरी ही डाइज, हुमायूं बादशाह बन जाता है। फिर अगले साल ही व्हाट हैपन्स के हुमायूं डाइज। किस तरह मरता है? लाइब्रेरी की स्टेयर से वो नीचे आता हुआ उसका पैर स्लिप हो जाता है और अल्टीमेटली वो फॉल होके वो उसकी डेथ हो जाती है। ये पेपर में ही पूछा हुआ एग्जैक्टली उसने ऐसे, कौन सा बादशाह है या हुमायूं की डेथ कैसे हुई? ऑप्शन होता है, ही फेल फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ अ लाइब्रेरी एंड ही डाइज। अच्छा, थोड़ा सा जरा पीछे आ जाए। हुमायूं जो है एट दैट टाइम, हुमायूं शेर शाह सूरी रूल कर रहा है, हुमायूं ही इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। नाउ अ टाइम कम्स कि वो क्रॉस करता है, मतलब वो गुजर रहा होता है फ्रॉम अ सिटी इन पाकिस्तान बाय द नेम ऑफ उमरकोट। उमरकोट पाकिस्तान में, तो वहाँ पे उसकी जो वाइफ है वो एक बच्चे को जन्म देती है और
वो जो बच्चा है, ही इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। उसका नाम है जलालुद्दीन अकबर। पेपर में वो सवाल बनाता है कि कौन सा मुगल एम्परर ऐसा है कि जो मॉडर्न डे पाकिस्तान में पैदा हुआ। सो दैट आंसर इज एम्परर अकबर। अच्छा, अकबर को थ्रोन मिलती है जस्ट एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में। लेकिन आप ये देखें कि कोई भी मुगल एम्परर ऐसा नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी मुगल एम्परर हैड टू फाइट हिज वे टू अचीव द थ्रोन। यानी कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा, ठीक है जी, हुमायूं ने अपना जो भाई है कामरान, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उसके साथ इसे फाइट करना पड़ा। अकबर को भी जाहिर है थ्रोन जो है वो कोई प्लेट में रख के नहीं मिली, इवन ही हैड टू एजर्ट हिज वे टू टू सिट ऑन द थ्रोन। सो ये क्या करता है कि जब इसका फादर मर जाता है तो एक हिंदू लीडर होता है बाय द नेम ऑफ हीमू, वो क्लेम करता है कि नाउ दिस थ्रोन बिलोंग्स टू मी। तो अकबर जो है वो आर्मी लेके जाता है, ठीक है, जस्ट एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में आर्मी लेके जाता है और पानीपत के मैदान पे दोबारा फाइट होती है। दिस इज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, एंड द ईयर इज 1556। ये वही ईयर है जब हुमायूं की डेथ होती है, ठीक है। हेमू को डिफीट कर देता है और अकबर जो है ही बिकम्स द रूलर। अच्छा, अकबर का आपको पता है कि दौर बड़ा इंपॉर्टेंट है ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस, वो हम आगे देखते हैं क्या है। लेकिन अकबर का दौर ऐसा है कि इसमें बहुत से इलाके मुगल एम्पायर में ऐड हुए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर ऐड हुआ 1585 में, 1585 में कश्मीर ऐड हो जाता है मुगल एम्पायर में, ठीक है। कंदहार, सिंध, बंगाल 1580 में, ठीक है, ये इलाके सारे आ जाते हैं। तो मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो सवाल वो पूछता है अक्सर कि दीन इलाही ये किसने बनाया और कब बना, पेपर में वो ये पूछ लेते हैं। अच्छा, ओवरऑल जो चीज़ आपने नोट करनी है ना, वो ये देखनी है कि वन पेपर में वो आपसे डिटेल में कभी नहीं पूछेगा। उसने एमसीक्यू बनाते हुए उसने देखना है कि वो डिटेल जो एमसीक्यू में फिट हो जाए, जो पेपर में फिट हो जाए। तो वो लेंथी चीज़ों में नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा, वो उन चीज़ों को टारगेट करेगा जो डेट्स हैं, उन चीज़ों को टारगेट करेगा जो शॉर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये स्टाइल है एग्जामिनर का। होता ये है कि तमाम के तमाम वो क्वेश्चन बना के ना, एग्जाम जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो पेपर बना लेते हैं और वो डाटा बैंक में थ्रो कर देते हैं। फिर वो कंप्यूटर की एक की लगाते हैं, कंप्यूटर खुद ब खुद ही आपका पेपर जनरेट कर देता है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो आपसे पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कंप्यूटर नेक्स्ट पेपर डेवलप करते हुए उन्हीं कॉम्बिनेशन में से सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन से बनने हैं, आप जो है क्वेश्चन बनने हैं जो डेटा बैंक में है, ठीक है, एंड दीज क्वेश्चंस आर इन द डेटा बैंक, आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो उसमें वन फेवरेट क्वेश्चन इज कि दीन इलाही कब बनता है, क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल देख लें। दीन इलाही जो है, अकबर क्या करता है कि तमाम मजहब को इकट्ठा करके, ठीक है, एक फाइनल रिलीजन बनाता है, ठीक है, रिलीजन ऑफ द एम्परर, ठीक है, बाय द नेम ऑफ द। तो सर अकॉर्डिंग टू मैंने दिस, ये रिपीट किया कि अकबर की जी पानीपत में जब 1756 में नहीं नहीं अकबर नहीं, की लड़ाई किसके साथ होती है? सॉरी सॉरी, 17 में नहीं आपने जाना, हम अभी जिस साल में हैं दैट इज 1556, 1500। जी जी सर, जी जी 1556 इसमें जी जी, अकबर की लड़ाई किसके साथ होती है पानीपत में? हीमू के साथ, हीमू, ओके HEMU, हेमू, ठीक है ओके सर। जी। 1581 में अकबर, एम्परर अकबर जो है वो दीन इलाही बनाता है। ये बादशाह जो है तमाम मजहब को इकट्ठा करके उनकी जो उसे पसंद आती हैं बातें, उनको मिक्स करके एक मजहब जो है वो बना लेता है, ठीक है। सर ये कब बनाते हैं, दोबारा डेट बता दीजिएगा, दीन इलाही? 1581 में, 1580। अच्छा। जी। फिर बीच में से कुछ अरसे के लिए अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेता है लाहौर, ठीक है, फॉर 14 ईयर्स। ये भी पूछा हुआ है कि कौन से मुगल एम्परर ने लाहौर को कैपिटल बनाया। तो फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 14 ईयर्स ये लाहौर शिफ्ट कर लेता है कैपिटल, ठीक है। तो इसके बारे में जो है ना इम्पोर्टेंट मोस्टली चीज़ें यही हैं।
एम्पायर्स में न्यू एडिशन भी होती हैं। तो अब इसने एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ली है और बहुत इसका रेवेन्यू इकट्ठा हो गया है। तो नेक्स्ट एम्परर्स जो आएंगे उनका जो काम है, इट इज़ नॉट टू बिल्ड द एम्पायर, इट इज़ टू स्पेंड व्हाट द अदर्स हैव अर्न्ड। अब ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि अब जब वो पेपर में अक्सर पूछता है कि फ़लाँ चीज़ किसके दौर में बनी, फ़लाँ मस्जिद या फ़लाँ किले वगैरह किसके दौर में बने, तो वो दौर जो है वो 2 पीपल आर फेमस इन दैट रिस्पेक्ट। फर्स्ट इज़ जहांगीर, ठीक है, एंड देन इज़ शाहजहां। अकबर के बाद आता है शाहजहां, सॉरी जहांगीर। अकबर का कोई बेटा नहीं होता, तो ही थॉट कि मैं मे बी आई विल डाई चाइल्डलेस, और मेरी एम्पायर जो है वो कोई इनहेरिट करने वाला नहीं होएगा। तो लेजेंड हैज़ इट कि ही ट्रेवल्स ऑन बेयरफुट टू द श्राइन ऑफ अ सूफी सेंट शेख सालिम चिश्ती। उनके दरबार पे जाता है, उनसे कहता है कि जी आप दुआ करें मुझे बेटा हो, एंड हिज प्रेयर इज ग्रांटेड एंड ही इज गिवन अ सन। तो उनके ऑनर में एक तो अपना दरबार जो है वो शिफ्ट कर देता है फतेहपुर सिकरी, जहाँ पे इन बुजुर्ग का जो था वो डेरा था, वहाँ पे शिफ्ट कर देता है। दूसरा, इनके ऑनर में, क्योंकि इन बुजुर्ग का नाम था शेख सालिम चिश्ती, अपने बेटे का नाम वो क्या रखता है, सलीम। तो जो एम्परर जहांगीर है उसका दूसरा नाम है प्रिंस सलीम, भी उससे कहते हैं। ये भी उसने पूछा हुआ है कि प्रिंस सलीम जो है वो शाहजहां है, अकबर है, कौन सा है, तो ये जहांगीर है। अच्छा, जहांगीर के बारे में इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो ये हैं, एक तो इंपॉर्टेंट नूर जहां है, ये आपने अक्सर सुना होगा नाम, ठीक है, वो भी हम आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि इनका जो सीट ऑफ गवर्नमेंट होती है वो होती है आगरा। दरियाए जमुना है ना, दरियाए जमुना, उसके ऊपर जो एक सिटी है दैट इज आगरा, ठीक है। तो फ्रॉम यहाँ पे आप समझ लें दरिया है, एक तरफ फोर्ट है और दूसरी तरफ जमीन। तो इनके दरमियान जो है ना वो एम्परर जहांगीर ने एक चेन लटकाई थी कि किसी को भी इंसाफ चाहिए हो बादशाह से, तो वो उस जस्ट चेन को आके वो हैंग कर दे, वो उसको रिंग कर दे, तो वो चेन जब वो बजेगी तो फिर इसका मतलब है कि देयर इज सम पर्सन हु नीड्स जस्टिस। तो अक्सर सवाल आता है कि चेन ऑफ जस्टिस कहाँ पे थी, किस एम्परर ने ये लॉन्च किया आइडिया, तो एंड सो ऑन। अच्छा, इसके बाद जहांगीर की वाइफ इंपॉर्टेंट है। इसकी वाइफ का नाम है नूर जहां। नूर जहां जो है इसका रियल नेम होता है मेहरुन्निसा, ठीक है। ये मतलब अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस ये बेवा होती है किसकी, शेर अफगन की। शेर अफगन जो है ये एक पर्शियन जनरल होता है, ये अब जो है बंगाल वाले रीजन में। तो कहा यह जाता है कि नूर जहां जो है वो उसकी वाइफ थी, बट एम्परर जहांगीर वांटेड टू मैरी हर, तो उसने फिर शेर अफगन को मर्डर करा दिया एंड ही मैरिड हर। दिस इज व्हाट मतलब मोस्ट हिस्टोरियन से। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट है ना, वो पूछेगा कि जी नूर जहां का असल नाम क्या, वो पूछेगा कि इनकी शादी कब हुई, तो 1611 में इनकी शादी होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपने कभी, जो लोग लाहौर में से हैं, दे मस्ट हैव सीन के शादरा में जो है वो शादरा के पास जो है एक मकबरा बना हुआ है, वहाँ पे कुछ पर्सनैलिटीज दफन है। वन ऑफ देम इज जहांगीर। बाज़ का वो सवाल पूछता है कि कौन सी मुगल एम्परर जो है वो लाहौर के राउंड अबाउट दफन है, तो ही इज एम्परर जहांगीर, ठीक है। अच्छा, एम्परर जहांगीर के दौर में फर्स्ट टाइम यूरोपियंस को यहाँ पे ट्रेड करने की इजाज़त मिलती है, ठीक है। एम्परर जहांगीर का दौर वो है जहाँ पे फर्स्ट टाइम यूरोपियंस यहाँ पे आके उनको ट्रेड की परमिशन मिलती है। तो फर्स्ट ट्रीटी, कमर्शियल ट्रीटी विद द यूरोपियंस, वो इसके दौर में होती है। दीज आर द मेन हाईलाइट्स एज फार एज जहांगीर इज कंसर्न। फिर आप आ जाएं शाहजहां पे। अच्छा, शाहजहां जो है ना, इसका निकनेम है प्रिंस खुरम, ठीक है। अच्छा, ये जब पावर में आता है तो एट दैट टाइम मतलब 1628 में आप कह लें कि ही कम्स इनटू पावर। इसके ज़माने में बंगाल में बहुत बड़ा फैमिन आता है इन 1630। एक बहुत बड़ा फैमिन आता है, तो
मतलब ही अल्टीमेटली हैंडल्स दैट। बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पे अक्सर फेमिन्स का आप सुनेंगे, मतलब इवन अंग्रेज़ों के दौर में भी यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा फेमिन आया था, विच वाज वन ऑफ द रीज़न व्हाई दे पार्टीशन, मतलब आई थिंक दे पार्टीशन द प्रोविंस। अच्छा, शाहजहां की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो द लिविंग लेजेंड एज वी सी इंडिया में एक देयर इज अ पीस ऑफ आर्किटेक्चर नोन एज ताजमहल। ताजमहल इज एसोसिएटेड विद शाहजहां। ताजमहल की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा ये देख लें कि ताजमहल की वाइफ का नाम होता है मुमताज महल, बिकॉज ही वॉज greatly intimate with his wife, तो but she died during childbirth, तो उसकी याद में एम्परर शाहजहां वो क्या करता है, वो एक मॉन्यूमेंट बनाता है। उस मॉन्यूमेंट का नाम है ताजमहल, ठीक है, टू कमेमोरेट द लॉस ऑफ हिज वाइफ। और ये फर्स्ट मुगल एम्परर है जो यूरोपियन से फाइट करता है, ठीक है। मुमताज महल कौन है? औरंगजेब एम्परर जो आगे आएगा उसकी वालदा हैं, ठीक है। इनके होते हैं 4 बेटे, दारा शिको, ठीक है, शाह शुजा, मुराद एंड औरंगजेब, ये 4 भाई होते हैं, ठीक है, एक ही माँ से। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी मुगल एम्परर ऐसा नहीं है कि जिसको तख्त प्लेट में रख के मिला है। हर मुगल एम्परर को फाइट ही करना पड़ा है, ठीक है, कोई स्मूथ सक्सेशन नहीं था किसी एम्परर का। तो औरंगजेब क्या करता है, अपने सारे भाइयों से फाइट करता है, एंड अल्टीमेटली जो द विनर ऑफ देम ऑल इज औरंगजेब आलमगीर, ठीक है। ही बिकम्स एम्परर इन 1659 आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल हिज ब्रदर्स। अब थोड़ा सा जनरली आपने आइडिया ये लेना है, बिकॉज वी आर स्टडिंग वन पेपर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जनरली आइडिया ये लेना है कि अकबर वॉज वेरी वेरी लिबरल। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट के उसने हिंदूज को जो है वो लेवरेज दिया, फिर उसने रिलीजन को उसमें नई चीजें इनोवेट की। औरंगजेब जो था ही वाज एन ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब कि ही स्ट्रिक्ट टू द फंडामेंटल्स, ठीक है। तो वो क्या करता है, इसी तरह की पब्लिक पॉलिसी लेके आता है। मिसाल के तौर पे इस्लामिक कैलेंडर को दोबारा ले आता है, हिजरी कैलेंडर को दोबारा ले आता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जिजिया टैक्स को रीइम्पोज करता है, फिर ऑस्टेरिटी मेयर्स लेके आता है एम्पायर में। ऑस्टेरिटी मतलब मेयर्स का मतलब है कि जो एम्पायर का एक्सपेंडिचर है उसको कट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मतलब वन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दक्कन कैंपेन जो है इसका बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा कंज्यूम करती है, तो फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ हिज टेनोर ही इज ऑक्यूपाइड विद द डेक्कन कैंपेन, ठीक है। तो अल्टीमेटली औरंगजेब इज द लास्ट ग्रेट लीडर ऑफ द मुगल एम्पायर, नॉट द लास्ट, ठीक है, द लास्ट ग्रेट। ये कब तक रूल करता है? 1707 तक, 1707 तक, ठीक है। नाउ अब इसमें जो आपने देखना है कि सीक्वेंस मुगल एम्पायर के जो क्वेश्चन, मुगल एम्पायर में मैं डिटेल में गया हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सवाल वो बनाता है थोड़ा सा डेप्थ में जाके बनाता है। इससे पहले जो एम्पायर हैं, इससे पहले जो हिस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाता। जो जनरल पैरामीटर्स हैं वी हैव डिस्कस, ठीक है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल एम्पायर में किस एम्परर ने किसको सक्सीड किया। फर्स्ट इज बाबर, हुमायूं, ठीक है जी, अकबर, एंड देन जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, ठीक है। ये सीक्वेंस बन रहा है। फिर इनके टेनोर्स का आपको पता होना चाहिए। एम्परर अकबर जो है 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से 1540 तक, बीच में 15 साल का गैप क्योंकि शेरशाह सूरी। फिर 1555 से 56 तक 1 साल क्यों रूल किया? क्योंकि स्टेयर से गिर के फौत हो गया था। एम्परर अकबर 1556 टू 1605। अकबर का वो दौर है कि इस दौर में इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो क्वीन रूल कर रही थी, शी वाज क्वीन एलिजाबेथ वन। पेपर में वो बाज़ पूछता है कि हु इज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर। कंटेम्पररी मतलब कि एक ही दौर में मतलब दे रूल्ड, तो शी इज क्वीन एलिजाबेथ वन। फिर इसके बाद जहांगीर आता है 1605 टू 1627, एंड देन शाहजहां 1627 टू 1658, फाइनली 1658 से लेके 1707 तक औरंगजेब।
तो आज की हमारी क्लास के लिए जो है वो औरंगजेब तक हम ब्रेक लगाएंगे इंशाल्लाह ताला, फिर नेक्स्ट में हम आगे लेके चलेंगे। अब इसमें जो जनरली आपने चीज़ देखी है ना, मैं आपको बताऊं, ये फैक्ट्स मतलब दे आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड ऑनलाइन। आपने जो चीज़ नोटिस करनी है कि मैं किस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली हमारा जो पैटर्न ऑफ स्टडी है, या हम इंफॉर्मेशन को जिस तरह स्कैन कर रहे हैं, व्हाट इज दैट वे। मतलब आपने सेल्फ स्टडी भी करनी हो तो वन पेपर के लिए इफ यू आर गोइंग इन टू मच डिटेल, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। सो यू हैव टू नोटिस के व्हाट इज आवर पैटर्न ऑफ स्टडी, ठीक है। हम किस इंफॉर्मेशन को टारगेट कर रहे हैं और एक टॉपिक के बारे में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है, किस नेचर की इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वन पेपर में जो है वो आई थिंक दिस इज द मेथड हाउ यू हैव टू स्टडी। और ये मेथड जो है ना, according to this method you can cover a lot in a very less time, ठीक है। So and even if you open the past papers, inshallah taala I hope so कि these are the topics which you will frequently see, जो examiner आपसे जो है ना frequently पूछेगा। तो so far हमारा लेक्चर यहाँ तक था। अगर आपका कोई सवाल है, if you have any question, तो please ask before फिर मैं आपसे इजाजत लूँ। जी सर, दो चीजें रिपीट कर दें। शाहजहां का आपने वो जब वो पावर में आया था वो 1627 थे, 28 बताया था आपने स्टार्ट पे शायद। शाहजहां का 1620। या देखो मैं आपको बताऊं, डेट्स जो है ना, डेट्स में आगे पीछे हो सकते हैं, ये नहीं कि मतलब इट इज माय स्लिप ऑफ द टंग। कुछ किताबों में, फॉर एग्जांपल मोहम्मद बिन कासिम में कुछ किताबों में लिखा हुआ 1711, कुछ वो 1712, ठीक है। तो डेट्स मतलब जो एक साल आगे पीछे इट्स ओके, सही है। मिसाल के तौर पे आप फॉलो कर रहा हूँ वो KLE की है, फारूक नसीम बाजवा की है, तो उसमें डेट्स का फर्क आ सकता है कहीं ना कहीं पे, 1-2 साल आगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जो मेरे पास जो डेट है ना, ठीक है, वो 1628 फरवरी है, टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज। लेकिन जनरली जो अगर आपके पास ऑप्शन में 1627 भी है, इट्स ओके, सही। तो डेट्स का आपने थोड़ा सा रखना है कि आगे पीछे जो है वो मतलब दिस एरा, एज फार एज दिस एरा इज कंसर्न, आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड्स कि आप कौन सी सोर्स फॉलो कर रहे हैं। जी सिकंदर आजम के आपने वालिद का नाम क्या बताया था सर? फिलिप ऑफ मैसिडोन, फिलिप ऑफ मैसिडोन। ओके सर। सर बुक्स के नाम बता दीजिएगा यार। बुक्स के नाम आपको मैं बताऊं, सबसे आपको शॉर्ट तरीका बताऊं, ठीक है, ताकि आप अपना बहुत ज़्यादा उसमें टाइम ना वेस्ट करें। वैसे अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, किताब है KLE की, वो बड़ी अच्छी किताब है, उसमें सब चीज़ें डेप्थ में दी हुई हैं। यू कैन मेरे लेक्चर सुनने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आप चीज़ें टैली कर सकेंगे, बिकॉज नाउ दैट फंडामेंटल और दैट बेस इज देयर। KLE की किताब है, उसने डिटेल में सारा डिस्कस किया, हिस्ट्री ऑफ द पार्ट। उसके बाद जो दूसरी किताब है वो है ये, आवाज डिस्टॉर्टेड हो रही है। बुक्स का नाम दोबारा बताइएगा, बुक का। हिस्ट्री ऑफ, एक बुक है KLE की, जी KLE की, वो KLE हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। लेकिन वो जो है ना किताब, मतलब वन पेपर के लिए वो बहुत ज़्यादा डिटेल में चली जाती है। मतलब आप पढ़ेंगे उसमें फिर आपको 2 वॉल्यूम्स पढ़ने पड़ेंगे। इफ़ यू कैन रीड इट्स ओके फाइन। उसके बाद दूसरी जो थोड़ा सा शॉर्ट सोर्स है ये है, अगर मतलब आपको मिल जाए तो इट्स ओके, अदरवाइज नो नीड टू वरी। ये फारूक नसीम बाजवा की है, इट इज आल्सो अ गुड बुक। इसका सबसे अच्छा फीचर जो है ना वो ये है कि हर चीज के यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वन पेपर में मैं आपको बताऊं, आपने डिटेल में ज्यादा जाना भी नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना भी नहीं, क्योंकि देखिए ना वन पेपर है, उसने आपसे डेप्थ में चीजें नहीं पूछनी बहुत ज्यादा। उसने रहना है कि आपकी जनरली चीजों के बारे में नॉलेज है कि नहीं, जनरली ओवरव्यू आपका है कि नहीं, ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करनी है। तो आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो चले जाएं। अब मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ तरीका। शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका ये है कि आप देखें कि पिछले 3-4 सालों में एग्जामिनर पूछ क्या रहा है,
क्योंकि देखो जो तरीकेकार है, जिस तरीकेकार से पेपर बनते हैं कि वो सवाल बनवा लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं प्रोफेसर हूँ, फलां बंदा उसको पता है, सारों से उन्होंने क्वेश्चंस बनवा लिए। अब ये नहीं कि मेरा पेपर ही आएगा, उन्होंने सवाल को रख लिया डेटा बैंक में, ठीक है। जो है सारा डेटा बैंक जो है जहां से पेपर बनते हैं वहां पे सवाल रख लिए। पेपर बनाते वक्त उन्होंने कॉम्बिनेशन लगा देना कि हमें इतने सवाल इस टॉपिक से चाहिए, वो फिर सिस्टम ने या कंप्यूटर ने खुद ही सवाल उठा लेने हैं, ठीक हो गया। वो सवाल जो है वो उठा के ले आएंगे और वो आपका पेपर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब किसी एग्जामिनर को सर्टेन नहीं कि उसी के सवाल हैं कि नहीं। इसी वजह से आप देखेंगे कि अक्सर पीपीएससी के और एफपीएससी के सवालों में नंबर ऑफ टाइम्स यू सी के क्वेश्चंस आर रिपीटेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। शॉर्ट तरीका यार ये है कि आप पिछले 3-4 सालों को फोकस करें, उनके देखें कि एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, और वही चीजें आपके डाटा बैंक में हैं और वही आपसे पूछी जानी है इंशाल्लाह ताला। हार्डली इट इज पॉसिबल कि कोई शायद 2-3-4 सवाल नए बन गए हों या अनयूजुअल से हों, लेकिन ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये ऐसे नहीं है, ये पैरामीटर्स हैं, ये मेन चीजें हैं जो 3-4 इयर्स में से वो जो है ना फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं। तो आप ऐसा करें कि पास्ट पेपर की बुक है, ठीक है, वो गिलानी साहब आपको बता देंगे कौन सी, वो ले लें। आप देखेंगे एग्जामिनर का ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के साथ साथ वॉक करते रहें, वो आपको जो है ना शॉर्टेस्ट टाइम में आपको सक्सेस दे देगा। सो दैट इज द शॉर्ट रूट, ठीक है जी। कोई और सवाल? जी सर। सर जब आपने महमूद गजनवी का जिक्र किया था, वहाँ पे आपने सबुक्तगीन का जिक्र किया था और वहाँ पे आपने एक स्लेव का जिक्र किया था। सर उसका नाम बता दें, कौन किसका स्लेव था? यानी जो महमूद गजनी है ना, उसके जो वालिद, उनका नाम था सबुक्तगीन। जी जी। वो बेसिकली गुलाम थे किसके? के किसके सर? अलब्तगीन। अलब्तगीन का गुलाम है सबुक्तगीन। ओके सर। सबुक्तगीन का बेटा है, ठीक है। अच्छा सर नेट प्रॉब्लम आ रहा है आपकी तरफ से, शायद समझ नहीं आई सर। अब आपको आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। अलब्तगीन का गुलाम है सबुक्तगीन, ठीक हो गया। सबुक्तगीन का जो बेटा है वो है अलब्तगीन, सॉरी महमूद गजनी। ओके क्लियर सर। हो गया? जी सर। अच्छा, महमूद गजनी का जो गुलाम है वो है मलिक अयाज। मलिक अयाज जो है वो लाहौर का पहला गवर्नर था। ये सीक्वेंस बना। ओके सर। ठीक हो गया। देखो अगर आपको कोई दोबारा भी कुछ सवाल पूछना हो तो जस्ट आप व्हाट्सएप पे जाके मेरा नाम लिख के कि सर देयर इज अ क्वेश्चन, आप पूछ दें, आई विल आंसर। तो डोंट अबाउट दैट, ठीक है जी। चलें, ठीक है जी, फिर सो फार सो गुड। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।